بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو زاویہ بصیرت میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میں کامیابی کے 14 یقین میں آپ کو 8واں یقین ایوری تھنگ از پاسبل کے بارے میں بتاؤں گی۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، حرف حرف رٹ کر بھی آگاہی نہیں ملتی، حرف حرف رٹ کر بھی آگاہی نہیں ملتی، آگ نام رکھ لینے سے روشنی نہیں ملتی، آگ نام رکھ لینے سے روشنی نہیں ملتی، آدمی سے انسان تک آؤ گے تو سمجھو گے، آدمی سے انسان تک آؤ گے تو سمجھو گے کہ کیوں چراغ کے نیچے روشنی نہیں ملتی، کہ کیوں چراغ کے نیچے روشنی نہیں ملتی۔ بڑا سوچنے والے بڑا کر جاتے ہیں، جبکہ چھوٹی سوچ رکھنے والے صرف لوگوں کا مذاق ہی اڑاتے رہتے ہیں، اور وہ ہمیشہ اسی طرح رہ جاتے ہیں مذاق اڑاتے ہوئے، آج ایک کا، کل دوسرے کا، پرسوں تیسرے کا۔ یعنی کہ مذاق اڑانے والے کسی ایک کا مذاق نہیں اڑا رہے، وہ ہر اس انسان کا مذاق اڑا رہے ہیں، کیونکہ ان کا کام یہ ہے۔ اس لیے آپ بے فکر ہو کے جو کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن کام اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا نتیجہ بھی آپ کو اچھا ملے۔ آج سے 40 سال پہلے اگر کوئی اسمارٹ فون کی بات کرتا تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے کہ یہ تو ممکن ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ڈیوائس صرف ٹچ کرنے سے چلے، تصویر بھی کیپچر کرے، کال بھی کروائے، SMS اور ویڈیوز بھی دکھائے، ویڈیوز کو شیئر بھی کروائے، پوری دنیا کی معلومات اور تصاویر آپ تک بھی پہنچائے۔ ایسا ناممکن ہے، لیکن ایسا ناممکن تھا، لگتا تھا، لیکن آج ممکن ہو چکا ہے۔ اس لیے سمجھ لیں کہ اس دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو بہت عزت کے ساتھ پیدا کیا اور باوقار زندگی گزارنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس لیے باوقار زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ محنت کی جائے، اپنے خوابوں کو، اچھے خوابوں کو پورا کیا جائے اور ان کے لیے بہت تگودع کی جائے۔ اپنے دماغ میں ہمیشہ مثبت خیالات کو جگہ دیں تاکہ آپ کی سوچ مثبت ہو۔ آپ یقین کرنا ہوگا کہ اس دنیا میں سب کچھ ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ شروع میں یہ سوچ لیں گے کہ ممکن نہیں ہے تو پھر کیسے کریں گے؟ آپ نے تو ایک بات کہہ دی کہ ہے ہی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے، تو پھر تو کوشش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے، یہ جاننا ہے، اپنے دل میں یہ بتانا ہے اپنے دماغ کو کہ ہر چیز ممکن ہے، ہر چیز ممکن ہے۔ لائٹ ممکن ہوئی، رائٹ برادران نے جہاز اڑائے، ممکن ہو گئے، تو آپ نے بھی یہ کرنا ہے کہ جو پانا چاہتے ہیں پانے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں سوچیں کہ کیسے ہوگا، یہ ایسے ہوگا، اتنے اخراجات آ جائیں گے، یہ اگر سوچنے میں لگیں تو کچھ نہیں ہوگا۔ سب پلاننگ ضروری ہے، لیکن سب سے پہلے سوچنا ہے کہ اللہ پہ کامل یقین رکھتے ہوئے اللہ کے قوانین پر یقین رکھیں کہ وہ آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ اور دنیا میں ایسے کم لوگ نہیں ہیں جنہوں نے ناممکن کو ممکن بنایا۔ عظیم کارناموں کو دیکھ کے داد دی جا سکتی ہے۔ اگر ان سے پوچھا جائے، انٹرویو لیا جائے، تو ہمیشہ انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں تو یقین تھا کہ ایسا ہوگا، پھر کیسے ہوا یہ ہم نہیں جانتے، لیکن یہ جانتے ہیں کہ کامیابی کے گمنام کہ ہو چکا ہے۔ ہم یقین کی آنکھ سے کامیابی کے گمنام راستے کو دیکھ سکتے ہیں، اور جن کے پاس یقین ہی نہیں ہو کہ کچھ ممکن ہے تو وہ تو کچھ نہیں ہو سکے گا۔ جبکہ آپ دیکھیں کہ امپاسبل بھی کہہ رہا آئی ایم پاسبل، میں ممکن ہوں۔ تو ہمیشہ اپنے دماغ میں مثبت سوچ لایا کریں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کتنے لوگ تھے جنہوں نے اپنے آئیڈیاز کو کریٹ کیا اور حقیقت میں ان کو حاصل کر لیا۔ ہر کوئی خواب دیکھتا ہے، کامیاب کون ہوتا ہے؟ جو خواب کو پورا کرنے کی پلاننگ بھی کرتا ہے، جو اپنا قدم اپنی منزل کی طرف بڑھاتا ہے۔ دیکھیں، قدم آپ اگر فرض کریں کہ آپ نے جانا سیدھا راستہ چلتے جائیں گے تو آپ جلدی پہنچ جائیں گے۔ آپ ادھر بھی ٹرن کریں گے، ادھر بھی کریں گے، مذاق کرنے والوں کو دیکھیں گے، دوسرے لوگوں کی باتوں کی طرف دھیان دیں گے، تو پھر تو آپ کامیابی کی طرف نہیں جا رہے۔
تو कामयाबी के लिए क्या है कि हर चीज से बेपरवाह होकर अपने काम पे तवज्जो दें। खुद पे यकीन होता है, वो खुद को बुरी आदतों की तरफ नहीं लेके जाता। ना बुरी चीज़ों से मोहब्बत कर बैठता है कि इससे भी ये महफ़िलें भी अटेंड करो, वो भी करो और फिर कहो कि मैंने पहुँचना है किसी जगह, ऐसा नहीं होता। अब किसी ने इसके बारे में भी कुछ बहुत खूबसूरत शेर कहा है, काट कर दूसरों की टांगें खुद लगा लेते हैं। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी अपना कद बढ़ा लेते हैं कि आपने अगर किसी मंजिल की तरफ जाना है तो फिर आपको सिर्फ उसके बारे में सोचना होगा। आपको यहाँ मैं सबसे पहले एक मिसाल देती हूँ लियोनेल मेसी की, कि फुटबॉल का उसको बहुत शौक था। उसका ख्वाब था कि वो एक दिन बड़ा फुटबॉलर बने, लेकिन एक दिन उसे ये पता चलता है कि वो दिल की बीमारी और पाँव की कमजोरी की वजह से फुटबॉलर नहीं बन पाएगा। डॉक्टर्स ने कहा कि अगर तुम दोबारा मैदान में उतरा तो तुम्हारी जान जाने का खतरा है। लेकिन वो हार मानने वालों में से था ही नहीं, क्योंकि उसे जुनून था कामयाब होने का, फुटबॉलर बनने का। वो दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉलर बनने का ख्वाब देख चुका था। उसने अपने दिल का भी इलाज करवाया और फुटबॉल के मैदान में भी उतरा, और उस दिन से फुटबॉल की तारीख ही बदल डाली। फुटबॉल की दुनिया में सबसे एक बढ़कर एक नए रिकॉर्ड बनाने शुरू कर दिए, नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, और आज मेसी दुनिया का सबसे हाईएस्ट पेड एथलीट है। अगर मेसी डॉक्टरों की बात सच मानकर मायूस होकर बैठ जाता तो शायद वो इतना बड़ा फुटबॉलर ना बन पाता। लेकिन ये थी कि मेसी ने डॉक्टर को नहीं, खुद पर यकीन किया। और अगर आपको भी इस चीज का यकीन है तो आप भी कामयाब हो जाएंगे। इसी तरह एक ब्रिटिश जो थे वो एम्पायर, उन्होंने ओलंपिक्स के ब्रिटिश हेनरी एंड्रयूज थे। हैरी एंड्रयूज ने कहा कि ब्रिटिश ओलंपिक्स के हैरी एंड्रयूज का ये दावा था कि कोई इंसान जो है वो 4 मिनट से कम सेकंड में भी 1 मील का सफर तय नहीं कर सकता। ये 4 मिनट का रिकॉर्ड है और यही रहेगा। लेकिन नहीं, रॉजर बेनिस्टर जो था उसने 4 मिनट से पहले 1 मील दौड़कर पूरा कर लिया और 3:59.4 सेकंड में पूरा करके रिकॉर्ड कायम कर दिया। तो 4 मिनट से उसने ये बात गलत साबित कर दी कि नहीं हो सकता रिकॉर्ड। और 1954 तक 1 मील 4 मिनट से पहले नहीं किया था, लेकिन इसने उस वक्त रिकॉर्ड 1954 में तोड़ दिया और साबित कर दिया कि बात गलत है, दावा गलत है, मैं कर सकता हूँ। लेकिन सिर्फ यही नहीं था कि इसी ने कर दिया था। पूरे इसके 10 साल के बाद 1964 में स्कूल जाने वाला एक लड़का जिम उठता है और वो उसका भी रिकॉर्ड तोड़ देता है। 3:59.4 की जगह उसने 3:59 सेकंड्स में रिकॉर्ड बना लिया। क्यों तोड़ा? कि स्कूल जाने वाला लड़का ट्रैक पर दौड़ा तो उसके ज़हन में ओलंपिक की कोच की बात नहीं थी, बल्कि उसके दिमाग में रॉजर बेनिस्टर की बात थी कि ये कर सकता है तो मैं भी कर लूंगा। उसने भी कहा कि मैं पॉसिबल करके दिखाऊंगा। आप देखें कि पहले जो उड़ान थी वो ये स्पेस जर्नी कैसे मुमकिन हुआ था कि नील आर्मस्ट्रांग, इससे पहले ये मुमकिन नहीं समझा जाता था कि इंसान चांद पे जा सकता है, लेकिन स्पेस जर्नी मुमकिन हुआ और अब तो छुट्टियां गुजारने के लिए भी लोग स्पेस में आराम से चले जाते हैं। तो इसी तरह पहले उड़ान ये समझी जाती थी कि हवा से जो भारी चीज होती है वो नहीं उड़ सकती, क्यों? ग्रेविटी उसे गिरा देती है। लेकिन राइट ब्रदरान ने 16 साल मेहनत करके इस बात को गलत साबित कर दिया कि ऐसा हो सकता है। इसी तरह फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो थे वो 12 साल अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे, बहुत से अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे। तो इनमें खास बात ये थी कि 1933 से 1945 तक ये प्रेसिडेंट रहे, लेकिन ये पैरालाइज थे। ये पैरालाइज डाउन टू बॉटम थे और दुनिया ने कहती थी कि ये नामुमकिन है, लेकिन ये किसी से नहीं उलझे। ये अपना काम, इन्होंने सारा ध्यान अपने काम पे दिया और जब अपने काम पे ध्यान दिया तो देखें
कि दुनिया के में प्रेसिडेंट बन गए। इसी तरह अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो क्या करते थे कि उनको स्कूल से ये कहकर निकाल दिया गया था कि ये बच्चा बाकी बच्चों के साथ नहीं चल सकता क्योंकि ये कुंद ज़हन है, ये नहीं पढ़ सकता, ये बहुत सुस्त है। माँ ने लेटर पढ़ा और बच्चे से कहा कि बेटा इसमें लिखा है कि तुम तो बहुत जीनियस हो, और वो कहते हैं कि हमारे स्कूल में इतना काबिल टीचर नहीं है जो इतने जीनियस बच्चे को पढ़ाए, तो तुम ऐसा करो कि कल से तुम स्कूल नहीं जाओगे, मैं तुम्हें घर में पढ़ाया करूंगी। बच्चा बड़ा खुश हो गया कि वो घर में ही पढ़ लेगा, और वो बहुत बड़े अजीम जब साइंसदान बने तो वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि जब मैं मकान शिफ्ट कर रहा था तो ड्रा के अंदर मुझे वो वाइट कलर का पेपर मिला फोल्डेड। तो पहले मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या है। जब मैंने उसमें से मिट्टी को झाड़ा, जब खोला तो वो टीचर का लेटर था जो कि बहुत साल पहले उसकी टीचर ने उसको दिया था। और उसमें वो कहते हैं कि लिखा था कि मैं अपनी माँ के हाथ में रखा था, और जैसे ही मैंने खत पढ़ा मैं रो पड़ा क्योंकि खत में लिखा था कि तुम्हारा बच्चा कुंजन है, ये दूसरे बच्चों के साथ किसी सूरत स्कूल में नहीं चल सकता और हमारे स्कूल मत भेजना इसको। तो उन्होंने उनको पता चला कि उनकी माँ ने सारा उल्टा पढ़ के सुना दिया कि बच्चा बहुत ज़हीन है, और उन्होंने इसी बात को यकीन कर लिया और वो बन गए। इसी तरह विल्मा गोल्डन रूडोल्फ जो थी, विल्मा गोल्डन रूडोल्फ जो थी, वो अमेरिका की 30 ओलंपिक मेडल्स इन्होंने हासिल किए। तो इनका कहना था कि माय डॉक्टर टोल्ड मी आई विल नेवर आई विल नेवर वॉक अगेन, माय मदर टोल्ड मी आई वुड, एंड आई बिलीव माय मदर रेदर देन डॉक्टर। उनको पोलियो था तो डॉक्टर ने कहा कि अब आप कभी चल नहीं सकोगी, तो उन्होंने डॉक्टर की बात नहीं मानी। माँ ने कहा था कि तुम चल सकोगी, तो माँ की मान ली और वो जीत गई, और उसने 13 गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में हासिल किए। इसी तरह बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं। बेथोवन जो था ये 20 साल की उम्र में बहरा हो गया, बड़े कंपोजर्स बना, बहुत बड़ा कंपोजर बना। ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि जो सुन ना सके, जिसको सुर ही ना सुनाई दे, वो कैसे कंपोजर बन सकता है, लेकिन वो बना। क्यों? सुनेगा नहीं, समझेगा भी नहीं, लेकिन वो 20 साल की उम्र में जिसने अपनी सुनने की पावर खो दी हो, वो बन गया। और अल्लाह के लिए तमाम लोग बराबर हैं। अल्लाह के लिए ये नहीं है कि कोई ज्यादा है और कोई कम है। अल्लाह के लिए तमाम लोग बराबर हैं, और लेकिन जो हासिल करना चाहते हैं, जिनके दिल में कोशिश होती है, अल्लाह ताला उनको जरूर कामयाबी की तरफ ले जाते हैं। तो जो लोग हैं उनकी बातों की परवाह मत किया करें, वो तो आपको यही कहेंगे कि नहीं कर सकते हो। जिनके खोटे सिक्के भी नहीं चलते बाजार में, वो भी कमियां निकालेंगे अब तेरे किरदार में। तो तुम कोई किसी की कीमत को नहीं समझ सकता। तो जिनके इरादों में जान होती है उन्हीं की मंजिल आसान होती है। अपनी मंजिल के लिए आपको खुद स्ट्रगल करनी पड़ेगी, जैसे कि मैंने आपको बहुत सी एग्जांपल्स दी हैं कि उन लोगों ने की, और उन्होंने अपनी मंजिलों को हासिल कर लिया। और वही लोग मंजिल हासिल कर सकते हैं जो अपने 99% अपने मंजिल के बारे में सोचें, ना कि इधर उधर की बातों में और दूसरों की बातों पे ध्यान दें कि कोई क्या कह रहा है, कोई नहीं। यहाँ तक कि देखें डॉक्टर्स ने भी इतना कहा कि आप नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने इलाज करवा के